So, as we have discussed the basic concepts of the uh, heat transfer from one medium into another medium, okay, which is through conduction, convection, and radiation. Here, mostly we are dealing with the conduction and convection. Now, we will discuss the practical applications of the heat transfer, which are used in the agricultural processing operations. So we will discuss the heat exchangers. So as from the name, it is clear that the uh, heat will be exchanged among the different fluids. Suppose, okay, suppose the heat can be transferred from one fluid into another fluid without mixing them. Okay, suppose if you have processed the milk, and now suppose you are cooling it for taking purposes, so how the milk will be cooled without mixing it with any other medium. Okay, so heat exchanger is a device which is used for the transferring of heat from a hot stream of fluid to a cooled stream of fluid. Okay, suppose if we have a fluid which we want to cool it, so then we will have to transfer the heat from that hot fluid into cool fluid. So the mechanism, yeah, its arrangement, yeah, the device through which you can transfer the heat from hot fluid into cool fluid, that is called the heat exchanger. The fluids are prevented from mixing with each other, okay, by a heat conducting partition such as a pipe wall. Simplest example अगर आप देखें, suppose if you have a fluid of higher temperature which you want to cool down. So suppose अगर इस तरह एक container है, here we have a fluid of lower temperature. So just you can pass the hot fluid through this cool fluid with respect to some higher conductivity pipeline. So the fluid which is flowing inside the pipe having higher temperature, so it will come in contact at this point with the fluid having lower temperature. So the temperature will be, the heat will be transferred from the inside fluid into the outside cool fluid. Okay, and the fluid when it out at this point, so its temperature will be less than that entered at the initial point. So here the temperature or the heat is transferred from a hot fluid into a cold fluid. So this mechanism, this device, this arrangement is called heat exchanger. Okay, heat exchanger जो main example है, that is the refrigerator. Actually जो हाउसेज में होते हैं ना, हमारे पास जो फ्रिजेस होते हैं, रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि उसमें रेफ्रिजरेंट्स होते हैं which are flowing in some arrangements, और उसकी टेम्परेचर बहुत लो होती है. So when it come in contact with the products जिनकी टेम्परेचर हाई हो, so it extract the heat from that product, ठीक है, without mixing into it. So refrigerant है, इवापोरेटर है, कंडेंसर है. मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, आप लोगों ने अगर देखे हुए गाड़ियों में जो रेडिएटर लगे होते हैं, ठीक है, नॉर्मली हम उसको क्या कहते हैं, रेडिएटर कहते हैं ना, दैट इज रेडिएटर, ऑटोमोटिव रेडिएटर, विच इज टेकिंग द हीट फ्रॉम द इंजन एंड ट्रांसफरिंग इट इनटू द आउटसाइड एनवायरनमेंट. ठीक है, सिमिलरली कूलर्स है. ठीक है, so these are the some examples of the heat exchangers. Heat exchangers are used for both heating and cooling. Suppose if you have an agricultural product of very low temperature, and suppose you want to increase the temperature of the fluid, again then you will have to pass it through a hot environment. Okay, so either you will have to increase the temperature or decrease the temperature of your required product. Okay,
So the transferring of heat from hot stream into cooled stream of fluid without mixing them, that is called the heat exchanger. Okay. A heat exchanger is a device which is designed to efficiently transfer or exchange heat from one matter to another. Here you can see that the blue one, that is the one having low temperature, और यहाँ पे जो red है, that is the one having high temperature. So see, when the fluid of high temperature is flowing in these pipes, so it comes in contact with the secondary fluid या the fluid of low temperature. So अगर इस एक पॉइंट पे हॉट फ्लूइड इंटर हो जाए और इस 2 पॉइंट पे वो आउट हो रहे हैं, so उसका टेम्परेचर डिक्रीज हुआ होगा, because the heat will be transferred from the hot fluid into the cool fluid, because ये fluid जो flow हो रहा है ना, ये highly conductivity pipelines में flow होता है, ठीक है. So the heat will be transferred from inside the fluid into the outside cool fluid. So when the fluid is used to transfer heat, it could be a liquid, water, oil होते हैं, milks होते हैं, juices होते हैं, ठीक है, or it could be air. So actually in heat exchanger we are transferring heat from a fluid into a fluid without mixing them with each other. Okay, and the most well-known heat exchanger is the car radiator, because इंजन से जो है वो हॉट एयर आता है ना, तो उस एयर को कूल डाउन के लिए कार रेडिएटर में क्या होता है, यहाँ पे वाटर होता है, वाटर के टेम्परेचर क्या होते हैं, वो उसका कूल टेम्परेचर होता है. सो दे आर टेकिंग द हीट फ्रॉम द हॉट एयर, ठीक है. So depends on the medium, the heat exchanger will be air to liquid heat exchanger. Suppose you are transferring the heat from air to liquid, or it will be the heat transferred from liquid into air, okay, or the heat exchange between the liquid to liquid or air to air. तो ये डिफरेंट मैकेनिज्म्स होते हैं कि आप किस मीडियम से किस मीडियम को हीट ट्रांसफर कर रहे हैं. So air to liquid heat exchangers होते हैं, liquid to air, liquid to liquid, और air to air, ठीक है. So there are 3 heat transfer mechanism involved in heat exchanger. Being an engineer, mostly we are interested in the mechanisms, that how the heat will be transferred, how much will be the quantification. Okay, so basically we have 3 mechanisms. See, if a hot fluid, if a cool fluid is flowing in a pipeline in which you want to hot it, so ये primary fluid होगा, और जिस फ्लूइड से आप इसको हॉट कर रहे हैं ये सेकेंडरी फ्लूइड होगा, ठीक है. सो फ्रॉम द सेकेंडरी फ्लूइड द हीट विल बी ट्रांसफर्ड इनटू द पाइप. ये एक मैकेनिज्म हो गया. फ्लूइड में टेम्परेचर है, हीट है, फर्स्ट इट विल बी ट्रांसफर्ड इनटू द वॉल ऑफ कंटेक्ट. तो यहां पे ये क्या होगा, कन्वेक्टेंस होगा. Then through the wall of the pipe the heat will be transferred into the inside fluid. So here we will have the conductance. Then from the inside surface of the wall into the fluid, here we will have the convectance. So 3 stages होते हैं heat exchanger के. Convectance from one fluid into the wall of another fluid, then conductance through the wall, then convectance from the wall into the fluid, ठीक है. ये 3 mechanisms होते हैं. So the fluid may be separated because we are transferring the heat without mixing the fluids, so they will be separated with the help of the solid tube या pipeline having higher conductivity, कि heat जो है वो quickly transfer हो जाए, ठीक है. तो हमारे पास 4 हीट एक्सचेंजर होते हैं अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट. कांस्टेंट हीट एक्सचेंजर है, काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर है, पैरेलल फ्लो है और क्रॉस फ्लो है. मीन बेस्ड ऑन द मोमेंट ऑफ द फ्लूइड,
based on the temperature of the fluid. Char have, we will discuss one by one, but before going into detail, just understand the notation. फिगर्स में या इक्वेशंस में जो नोटेशंस होंगे उसको आप अंडरस्टैंड कर लें. जिनके साथ सबस्क्रिप्ट ए हो, that will denotes our primary fluid which we want to heat or cool. ठीक है, जिस फ्लूइड को आप हीट करना चाहते हैं या कूल करना चाहते हैं तो उसको हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे. बी जो है that will be the secondary fluid जिसके जरिए हम हीटिंग करते हैं या कूलिंग करते हैं. द फ्लूइड थ्रू विच वी आर डूइंग द हीटिंग और कूलिंग. ठीक है. सबस्क्रिप्ट 1 जो है that will denote the position where fluid A enters. D2 will be the position where the fluid A leaves. Mean the fluid which we want to heat or cool वो किस पॉइंट पे इंटर हो रहा है और किस पॉइंट पे आउट हो रहा है. ठीक है. W जो है that is the fluid rate in how much pound is moving in 1 hour. ये इसका डिस्चार्ज है. ठीक है, कि 1 आवर में कितना फ्लूइड जो है वो पास हो रहा है. अगेन दी हीट ट्रांसफर विल बी बेस्ड ऑन द फ्लूइड रेट. सिमिलरली सी जो है दैट इज द हीट कैपेसिटी इन हाउ मच टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड या हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड पर 1 यूनिट ऑफ फ्लूइड to raise its temperature by 1 degree Fahrenheit. Okay, and that is the heat capacity rate, which is the product of heat capacity. Mean heat capacity is BTU per pound per degree Fahrenheit multiplied by the fluid rate, which is pound per hour. So that is called the heat capacity rate. Okay, that how much heat is required to raise the temperature by 1 degree C for 1 unit of fluid, and that is the overall conductance from fluid to fluid. ये जो पाइप है ना उसका यूनिट कंडक्टेंस क्या होगा. अगेन that will be depend on the conductivity, the thickness and the contact area. ठीक है. अच्छा, now जो फर्स्ट है एक्सचेंजर है that is the constant heat exchanger. Suppose the fluid या the secondary fluid जो है, रिमेंबर दो टर्म में यूज करूंगा, एक प्राइमरी फ्लूइड, सेकंड वन सेकेंडरी फ्लूइड. प्राइमरी फ्लूइड इज द वन फॉर विच यू वांट टू डिक्रीज और इंक्रीज इट्स टेम्परेचर, और एक सेकेंडरी फ्लूइड है जिसके जरिए आप हीट को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं. ठीक है. नाउ सपोज द टेम्परेचर ऑफ द सेकेंडरी फ्लूइड इज कांस्टेंट, इट विल बी कॉल्ड द कांस्टेंट हीट एक्सचेंजर. समझ आ रहा है. सेकेंडरी फ्लूइड की टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो इसको कांस्टेंट हीट एक्सचेंजर कहते हैं. देखें, लेट वी हैव अ फ्लूइड which is entered at this point, that is the point of entrance of the primary fluid. So at this time, suppose its temperature is TA, that is the temperature of the primary fluid at the entering point. So when it come in contact with the secondary fluid, so its temperature will be decreased. इस तरह डिक्रीज होगा ना. नाउ दैट इज द पॉइंट एट विच द प्राइमरी फ्लूइड विल लीव द सिस्टम. तो यहां पे उसका टेम्परेचर क्या होगा, TA2. दैट इज द टेम्परेचर ऑफ द प्राइमरी फ्लूइड एट द लीविंग पॉइंट. और जो सेकेंडरी फ्लूइड है उसका टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा ना. मीन इस पॉइंट पे जो टेम्परेचर है ऑफ द सेकेंडरी फ्लूइड दैट विल बी TB1, और थ्रू आउट द सिस्टम उसका टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा. समझ आ रही है पॉइंट की नहीं? आर यू गेटिंग द पॉइंट? जी सर. यस सर. अच्छा, तो अब देखें,
अगर सेकेंडरी फ्लूइड का टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, तो फिर प्राइमरी फ्लूइड से हीट किस तरफ फ्लो होगा? जी, हीट कहां पे जाएगा फिर? सर जी, फ्लूइड में सेकेंडरी फ्लूइड के में आएगा सर। जी। See, the primary fluid temperature at the entering point is T1A. The temperature of the primary fluid at the leaving point is Ta2, mean its temperature is decreased, but the temperature of the secondary fluid is constant. तो यहां से जो हीट फ्लो हो रहा है, that will be utilized for the state conversion. समझ आ रहे हैं? मीन सेकेंडरी फ्लूइड का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, तो फिर वो हीट कहां पे जाएगा? सो इट विल बी यूटिलाइज्ड फॉर द स्टेट कन्वर्जन। अगर आप यहां पे आइस रख देना, आइस, ठीक है, स्नो, तो जो प्राइमरी फ्लूइड से हीट आ रहा है, इट विल जस्ट मेल्ट द स्नो फ्रॉम द सॉलिड स्टेट इनटू द liquid state. Its temperature will remain constant, and the heat which is transferred from the primary fluid, it will be utilized in the conversion of state of the primary fluid. ठीक है एक्सक्यूज मी सर। जी। सर अगर हम वाटर रख लेना 10 डिग्री सी पे और आगे एक बर्तन में हम उसमें फर्ज करें दूध रख ले और उसकी टेम्परेचर ज़्यादा, तो वाटर की टेम्परेचर तो ऑलरेडी इंक्रीज हो जाती है। नहीं, वो नेक्स्ट टाइप आ रहा है ना हीट एक्सचेंजर की, फिर उसका टेम्परेचर भी चेंज होगा। मीन आपकी पॉइंट ये है कि आप ये कह रहे हैं ना कि सेकेंडरी फ्लूइड का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, प्राइमरी का टेम्परेचर डिक्रीज होगा, इस तरह आप कह रहे हैं? यस सर, यस सर। हाँ, वो नेक्स्ट टाइप है। लेकिन एक टाइप ये है that the temperature of the fluid B, the temperature of the secondary fluid is constant because the undergoing temperature जो है ना, heat जो है, that will be utilized in the change of state, gaining or losing energy. मैं सिंपल एग्जांपल दूं आप लोगों को। सपोज अगर सेकेंडरी फ्लूइड जो है उसका टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 100 डिग्री सी है, द वन विच यू आर कूलिंग, सपोज उसका टेम्परेचर क्या है, 200 डिग्री सी है। द हीट विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्राइमरी फ्लूइड इनटू द सेकेंडरी फ्लूइड, लेकिन सेकेंडरी फ्लूइड का टेम्परेचर 100 डिग्री सी से इंक्रीज नहीं होगा, तो वो हीट जो है दैट विल बी यूटिलाइज्ड इन द कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ द सेकेंडरी फ्लूइड, और वो क्या होगा, वो वेपर में कन्वर्ट होगा। समझ आ रहे हैं? यस सर। So the heat exchanger in which one fluid is in constant temperature, that is called the constant heat exchanger, and this is एक्सक्यूज the मी special। जी, सर, अगर फ्लूइड वेपर में कन्वर्ट होगा ना तो ऑलरेडी वो एनर्जी गेन कर रहा है ना, तो एनर्जी जब वो so गेन that, करेगा तो that energy which the fluid is gaining is utilized in the state conversion. See, gaining or losing energy that is utilized in the evaporation or condensation. Temperature change नहीं होगा, ठीक है? ओके सर। या इस तरह भी होता है एक एग्जांपल कि द सेकेंडरी फ्लूइड जो है वो इतने हायर स्पीड पे फ्लो होता है ना, उसका जो रेट है WB, दैट इज द रेट ऑफ द फ्लूइड ना, ऑफ द प्राइमरी फ्लूइड फाउंड पर आवर, उसका रेट उतना हाई होता है या उतना क्विक होता है कि प्रैक्टिकली इट डज नॉट एक्सपीरियंस एनी चेंज इन टेम्परेचर। ये दो कॉन्सेप्ट्स है उसकी। So then we can say that the temperature of the secondary fluid is constant, and it will be called the constant heat exchanger. ठीक है? अच्छा, and the uh, सर ये जी, प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल कोई
मीन एनी आप मतलब मुझे अभी याद कांस्टेंट नहीं है, हीट लेकिन इसको एक्सचेंजर। आप इंस्टॉल कर सकते हैं ना कि सेकेंडरी फ्लूइड का स्पीड आप उतना ज्यादा रखें, या अगर किसी चीज को आप कूल करते हैं बाय यूजिंग आइस, आइस के जरिए आप किसी को कूल करते हैं ना, एक गर्म चीज है, कप ऑफ टी है, उसको आप आइस में रखें सर अगर तो आइस मेल्ट होगा। आइस हम इस्तेमाल करते तो वो तो फ्लूइड नहीं होगा। जी अगर आइस हम इस्तेमाल करेंगे ना सर फ्लूइड बी की जगह, तो वो तो फ्लूइड नहीं होगा ना, वो तो सॉलिड होगा सर। मैंने आप लोगों को बताया ना कि जस्ट जो एनर्जी है दैट इज यूज्ड इन द स्टेट कन्वर्जन। अब सपोज अगर एक फ्लूइड है, एक फ्लूइड है वो 100 डिग्री सी से उसकी टेम्परेचर ज्यादा है और आप उसको 100 डिग्री सी वाटर में रखें तो फिर वो वेपर में कन्वर्ट होगा। हीट एक्सचेंजर जो है ये इस तरह हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप फ्लूइड से कर दें, फ्लूइड से फ्लूइड की कर दें, ठीक है। सॉलिड को भी आप यूज करें। हीट एक्सचेंजर इज जनरल टर्म थ्रू व्हिच यू कैन ट्रांसफर द हीट फ्रॉम वन मैटर टू अनदर मैटर, ठीक है, विदाउट मिक्सिंग देम, इसको हीट एक्सचेंजर कह सकते हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों की जस्ट कॉन्सेप्ट के लिए बताया कि अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो फिर वो हीट एनर्जी कहां पे जाएगा, दैट विल बी यूज्ड फॉर द स्टेट कन्वर्जन, ठीक है। और या इस तरह भी है कि आपका जो सेकेंडरी फ्लूइड है वो उतनी ज्यादा स्पीड पे सपोज जा रही है कि उस पे उसके टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट ज्यादा नहीं हो रहा, प्रैक्टिकल इफेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है। यस सर। अच्छा, now suppose the temperature of the primary fluid at the entering point is Ta1 and the temperature at the leaving point is Ta2 and the temperature of the secondary fluid will be Tb, mean that is constant. Tb1 is equal to Tb2, that is constant. Now we are interested that how much the temperature will be decreased. So इसके लिए एक जनरल इक्वेशन हम लिख देते हैं, उसकी डिराइवेशन पे नहीं जा रहे। Ta1 minus Tb डिवाइड बाय Ta2 माइनस Tb, ठीक है। मीन यहां पे ये जो डिफरेंस है ना, इनिशियल डिफरेंस डिवाइड बाय फाइनल डिफरेंस इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस u, और एरिया कि कितनी एरिया उसका इन कंटेक्ट है, ये फ्लूइड जो फ्लो हो रहा है ना, अगर एक पाइप में फ्लो हो रहा है, और डिवाइड बाय द heat capacity of the fluid which you want to cool it or which you want to hot it, मीन उसकी एक यूनिट फ्लूइड के लिए कितना हीट रिक्वायर्ड है to raise the temperature by 1 degree C, and WA that is the rate of the flowing of primary fluid। तो ये बेसिक इक्वेशन है फिर कांस्टेंट हीट एक्सचेंजर का, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है दैट इज द काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर, just understand its mechanism. Suppose one fluid is entering at this point, the primary fluid is entering at this point, that is T1A, it is its initial temperature, and suppose secondary fluid is entering at this point, its temperature is Tb1। जाहिर बात है सेकेंडरी टेम्परेचर का फ्लूइड कम होगा, प्राइमरी फ्लूइड का टेम्परेचर ज्यादा होगा। नाउ सी ये फ्लूइड इस तरह मूव कर रहे हैं ना, दिस इज द वन विच यू वांट टू कूल इट, दैट इज द प्राइमरी फ्लूइड। सेकेंडरी फ्लूइड इस तरह मूव हो रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे ये प्राइमरी फ्लूइड जब एंटर होगा उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, विद रिस्पेक्ट टू द टाइम उसका टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा, एंड इस पॉइंट पे 2 पॉइंट पे उसका टेम्परेचर क्या होगा, Ta2। Similarly, the secondary fluid is entering at this one point, so here its temperature is Tb1, या ये 2 पॉइंट है ना विद रिस्पेक्ट टू द प्राइमरी, कि यहाँ पे वो एंटर हो रहे हैं, यहाँ पे ये आउट हो रहा है। सो अगर ये 2 पॉइंट है, सो 2 पॉइंट पे सेकेंडरी फ्लूइड एंटर हो रहा है, सो इट्स टेम्परेचर इज Tb2। इस 1 पॉइंट पे सेकेंडरी फ्लूइड आउट हो रहा है तो उसका टेम्परेचर राइज होगा, दैट इज Tb2। ये ग्राफिकल Tb1 that is the graphical representation of temperatures, and here you can see that
The primary fluid is flowing in this direction and secondary fluid is flowing in this direction. And that is the rate of the primary fluid and this is the rate of the secondary fluid. Clear हो गया ये? Yes, sir. अच्छा. Fluid A can thus be brought nearly to the temperature at which fluid B enters. ठीक है, फ्लूइड इस पॉइंट तक जब फ्लूइड ए आ जाएगा ना तो उसका टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली सेकेंडरी फ्लूइड के बराबर होगा. थर्ड वन जो है दैट इज द पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर व्हेन द बोथ फ्लूइड इज फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन. अगेन देखें, द प्राइमरी फ्लूइड एंटरिंग टेम्परेचर इज TA1 and the secondary fluid entering temperature is TB1. ठीक है, तो at the end the outing temperature of primary fluid will be TA2 and the outing temperature of the secondary fluid will be TB2. इसका increase होगा और primary का decrease होगा and both are flowing in the same direction. Rate डिफरेंट हो सकता है, रेट डिफरेंट सेम नहीं हो सकता ना, इट डिपेंड्स. अब देखिए, दिस इज द पॉइंट. इस वन पॉइंट पे बोथ फ्लूइड जो है वो एंटर हो रहे हैं और इस पॉइंट पे बोथ फ्लूइड आउट हो रहे हैं. सो एट दिस वन पॉइंट द प्राइमरी फ्लूइड इज हायर टेम्परेचर एंड द सेकेंडरी फ्लूइड इज लोअर टेम्परेचर एंड व्हेन दे आर गोइंग आउट, सो जो प्राइमरी फ्लूइड है उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा और सेकेंडरी का इंक्रीज होगा. अप्रोक्सीमेटली दोनों सेम हो जाएंगे. ठीक है, फ्लूइड ए कैन नॉट पॉसिबली बी ब्रॉट टू द एंटरिंग टेम्परेचर. ये फिर अदर डिटेल्स है, उसको हम इतनी डिस्कस नहीं कर सकते. ठीक है, मीन इसमें जो है ये दोनों एग्जैक्टली सेम पे नहीं आ सकते बिकॉज क्वेश्चन क्या है या पॉइंट क्या है कि जिस तरह ये फ्लो हो रहा है उस तरह ये फ्लो होगा ना, तो यहां पे क्विकली हीट ट्रांसफर हो जाएगा बिकॉज द टेम्परेचर डिफरेंट विल बी मोर एट दिस पॉइंट. और ये दोनों सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं तो यहाँ पे सेकेंडरी फ्लूइड जो है ये बाय सम अमाउंट उसका टेम्परेचर राइज हुआ होगा ना, तो फिर फर्दर क्विक हीट ट्रांसफर नहीं होता. ठीक है, लास्ट जो टाइप है दैट इज द क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर. वो ये है कि सपोज द प्राइमरी फ्लूइड इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, ओके, एंड द सेकेंडरी फ्लूइड इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन. समझ आ रहे? 3 लाइंस मैंने ड्रा किया. 2 फ्लूइड्स मूव इन अ नंबर ऑफ सेपरेट पैरेलल पाइपलाइंस व्हिच आर क्रॉसिंग ईच अदर. ठीक है, ये जो है ना, सपोज ये प्राइमरी फ्लूइड है, ये सेकेंडरी फ्लूइड है. अब देखें, ये जो प्राइमरी फ्लूइड का 1, 2 एंड 3 लेयर्स है, इनका एंटरिंग टेम्परेचर सेम होगा ना, हाई होगा. ठीक है, नाउ दिस वन पाइप जो है या वन लेयर जो है, ये इस प्राइमरी फ्लूइड के सपोज 4, 5 और 6 के साथ, जब ये इसके साथ इन कांटेक्ट आ जाए तो इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, फर्दरली यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, फर्दरली यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा. तो दैट इज दी, वी कैन से दैट टेम्परेचर ड्रॉप इसका इस तरह होगा. अब देखें, ये जो वन लेयर है ना प्राइमरी फ्लूइड का, ये जो 4, 5 और 6 लेयर ऑफ सेकेंडरी फ्लूइड के साथ इन कांटेक्ट आ रहा है, तो ये कूल है, लोएस्ट टेम्परेचर है सेकेंडरी का. तो वन लेयर जो है इससे ज्यादा हीट ट्रांसफर हो जाएगा. अब ये फ्लूइड जब यहां पे आ जाएंगे ना, सेकेंडरी फ्लूइड्स, उनका टेम्परेचर थोड़ा सा राइज होगा एज कंपेयर टू दिस पोजीशन. सो सेकंड लेयर ऑफ द प्राइमरी फ्लूइड का जो टेम्परेचर है वो फर्स्ट लेयर से थोड़ा कम ड्रॉप होगा. सिमिलरली थर्ड लेयर जो है उसका टेम्परेचर थोड़ा और कम ड्रॉप होगा. समझ आ रहा है? ये 3 लाइंस जो मैंने ड्रा किए. The temperature drop in the first layer will be more than the temperature drop of the second layer. The temperature drop in the second layer will be more than the temperature drop in the
थर्ड लेयर, ठीक है। ये तो प्राइमरी फ्लूइड्स के लाइंस हो गए। अब सेकेंडरी फ्लूइड जो है, सपोज ये जब इंटर हो रहे हैं तो तीनों का टेम्परेचर सेम है। अब ये फोर्थ वन जो है, फोर्थ वन किस पोजीशन पे आ रहा है? इसका जो पोजीशन है दैट इज द मोस्ट हॉटेस्ट पोजीशन विद द प्राइमरी फ्लूइड। सो फोर्थ फ्लूइड का टेम्परेचर क्विकली और ज्यादा राइज होगा। फिफ्थ प्राइमरी फ्लूइड का लाइन जो है, सेकेंडरी फ्लूइड का जो लाइन है, इसका टेम्परेचर फर्स्ट लेयर से थोड़ा कम राइज होगा। सिमिलरली थर्ड सेकेंडरी लेयर जो है, ये फर्स्ट सेकेंड लेयर से थोड़ा और कम जो है राइज होगा। इसको क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर कहते हैं, in which two fluids are flowing across each other। क्लियर हो गया? जी सर। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द heat transfer। Basically we have discussed the concept, mechanisms of heat transfers through different mediums, and most importantly the heat exchangers।